puraja mi ahinya ya seka media pertenti atau melami maka aro paculuji seloka ka media giong ka ado pakali done numpana lah hum ngogong elu koso ngunang publicity stan lango ada generally interest madu seloka media giong ka ado pakali done ngunu vai compel la delimitation reli ka ilio mi humpo toro pa ine ka delimitation reli ngup ka isa reli kontu mato wo ek chetaवनी भी था कि रजुजु साहब में kakatoa si nguna hadiji kia ngun bududuk kia la ngunu hala reli ngunu sokinto o puraja hala a gingin la reli into o delio darna mala SDC TSD ASU AYA Awaz and leading NGOs ata jantar mantar hung kendarna mala done o hala ka outcome mi reli olu koneku heka reli alo nunu chilo lukonu rijuji ayamakiala rijuji kamu mure hengu herelaka in motherly treatment mi nunu seka leading NGOs ata nunu chilo lukonu ngununu mi tala heka longo decide mudato je heka ngunu IG parko ka jiro mulai ini IG parko ka reli mulyo heka longo decide motor rijuji mi isbarto sabak sikhana parega hala ngo heka lok more dito o ka ngo any political party o ngo milotamo any political party o ngang affiliation ngkini ma o allegation ka lagasin ngo political party ya mane ngo hang bom yang interest ma ngo hekareli alok lango hento ngo simple voter padula resume korango uro kling ka against chi halahu ngununu mi lead mu gi dol hento o simple pada labu rejuji against pasing ready stone o solo media nung pa aru kulukule nun kapanya kuma nun yunya doku except SDC ngo appreciate mudu ngka aku abung payang ka mo ka team hibu masablu ka nelu mol ka team mi ngo appreciate mudu he ka alawa nunu kapanya kuma nun lead mu keno nunu mi lead ni kuma hopa tanu heru puraja aw besdo kintu kakilama hopa mi kone maja kone isten mu dok likindoku jijem lu kodok palikindoku hopa ngosolo media gion ado palido o ngka gion dunu sitare jijejipe tanu kojes pa sitare karila kaula disni ma chuha tati pidola chuha pochetat pidol du jala disni ma selo pa lukuma pa ekut malango media gion lindu ngka media klini mingo lukola heng ken reli Europa reli mulio goro pati mit gomre kimpa jila ta duldune ho ka rijuji ka jiro bijit mulio black mala kakila goro adi adunyal dane heka atang solono na jokor pa hika patakul danya dako rujui purajam jokor tar ag betul punya do ngo jokor tar singhe to putetela helin tokte ngo por jokor jila ke make la ngo ludu ngun kolo malangun meeting sete itanagorso nun kapadu do ngun saete tama yes butola ngun sa sindu ba posa nyemangun ke ho pangun kabanu tebul mal kapatu yes kon tam do la ke ngunu jijem luci yes ke tang stone yes tam dol senyam kata ike ngomado ngemi kolo ka campaign makala la tana tu yang kene luma hanya misaya ngemi ano uro rijuji pa chuche das ke mabioala ngemi hanya misaya campaign makado ngolo budu ngo jokor make ngo sarna atna leader make ngo jokor tarim gela ke make ngo jokor make ngo former student leader ke AGS apatani student teduto president apatani student teduto president luar Subensi district student teduto sisingo presently spokesperson ayau tedu ho fango haka
आया इज नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ला हलुला लला ngo आया का स्पोक्स पर्सन मलामी ऑर्गेनाइजेशन सलोंगो समिट मुतके ngo स्पोक्स पर्सन मलामी जन ngo मोबुली के पॉलिटिकली ngo step in mudu pala compel dokuna na so mala clear ngo ka ke tu mane aya is non political organization so that respected aya goodwill and integrity should not be questioned. I myself tendering my resignation from the post of spokesperson aya al ngo ke spokesperson mala ngo solo pada ngo tender menunum bichke hala ngo loro ke ba mane nguk leadership la one decided ngoreli along mi karju ama kela seka leading angels lo kotok lang ayamal hengda to duku o nge quality hala ki leadership ne return back ka second thought gada mas duke o ngor juji mi ne pa na board bikiman ne pa ngor juji board bikima hala ngo chuche short pango luchila abulo ko ka tadala make number 1 delimitation issue juji pe juji ka pelar loda in ayapa aku bos lu ko jirke delimitation issue acha delimitation issue mi mo ka against sign mutu compel ate mo pare बात का बात mutu ku joint jantar mantar ka suka tanuo ka pe ko pe loy alare isomit ka darnamul dulio appointment ate bima kate kapa malu do himi heru ya pantapana himi ngunumi ngamas pia ai aju jo kamas pia ala ngoeno ho pango second point la ke male heno hokolo karlis recent ka jiro ka visit mulio nonu ka tapate do mom arju neris atang boycott mubudo hem hena male kejuli lubudo ho करते तो करने दो hala clear lubudo mo bot mi ngoang parwama ke ludo oh enggak time hela kya lugu don arjula neris lu the intellectual ka group ado him hela riak mu do hu kolo mo jiro chalio ichuche amudo 2026 o seat delimitation pa dokin dokela 26 o delimitation mutto mumato 60 seat mbori ke make hu mo pujo seka media atan takabudo media ta moi takayang kale ena nok la bichi kanse देगा यजलियो का ngoya का हला मोड़ दो यजलियो का रागाव कला अरे हमको मालूम नहीं है कहां से देगा पहले डिलिमिटेशन तो कराओ दो पॉपुलेशन की जरूरत नहीं होने से हम लोग लेम्पिया वाला हम लेम्पिया का हम लोग रागा में चला जाएगा और अपोली वाले अगर हम लोग के नहीं जुड़ता है तो यजली में चला जाएगा हमको कोई हमें क्यों पूछता है हम कहां से देगा कहां से लाख के देगा तेरा अतोबोलुक से दो या फिर आपका मोन उस तरफ से हमको क्या मालूम हमको दो चाहिए 60 में से 26 में देखिए हम बार बार बोले 26 में 60 सीट से आगे नहीं बढ़ेगा ऋषि को भी पता है इसीलिए ये बोल रहा है आप दिल्ली का देख लीजिए दिल्ली में 3 करोड़ कुछ 46 लाख है 70 सीट है तो ये गुमराह कर रहे हैं ऋषि साहब बोला जब बढ़ेगा तभी देगा अब बढ़ेगा तो आपका जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमें तो ऐसे मिल रहा है डिलिमिटेशन तो कराओ ना हमको कहां से मिलना है कहां से नहीं मिलना है वो गवर्नमेंट को डिसाइड करने दो तो ये और उस दिन मीडिया में हम देखा है 2019 में जब वो इलेक्शन के लिए कैंपेन के लिए आया था ड्यूरीग्राम में उसमें पोल्स प्रॉमिस किया है हम दिला देगा अब कल परसों भी वही बोल के जा रहा है वन ऑफ द यंग लेडी हम अप्रिशिएट करता है थ्रू जर्नलिज्म 3 बार पूछा है अब 19 में बोला है उसको नकारा है कौन लड़की था हमको मालूम नहीं ऐसे होना है हम उसको कॉपी पिलाएगा एक बार ऐसे होना है नहीं वो पूछना है 3 बार बोला है और 3 बार जवाब नहीं दिया है हम गौर से देखा है तो वो इलेक्शन के 19 में जो बोला फॉल्स प्रॉमिस हम दिलाएगा तो अभी भी वही सेम बोल रहा है अब देखिए अभी एनडीए नरेंद्र मोदी का अभी गवर्नमेंट है तो वो लोग चिंता ही नहीं है आप देखिए 370 आर्टिकल को जम्मू एंड कश्मीर से हटा सकता है और 3 मंथ
पूरा सर्वर डाउन करके अगर वो उसको 370 को हटा सकता है तो ये तो छोटा मोटा बात है ना, ये तो छोटा मोटा बात है। तो यहाँ में भी आराम से कर सकता है, मोदी को प्रॉब्लम नहीं है, एनडीए को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है दो रिप्रेजेंटेटिव जो वेस्टर्न पार्लियामेंट ईस्टर्न पार्लियामेंट दोनों रिप्रेजेंटेटिव विलिंगनेस नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग हुआ है वो बहाना है। हमारा जो यहाँ से दो रिप्रेजेंटेटिव गया है ईस्टर्न पार्लियामेंट और वेस्टर्न पार्लियामेंट, वो दोनों विलिंग नहीं है। अगर वो दोनों विलिंग होने से 370 आता सकता है तो उस ये डिलिमिटेशन कराने में सेंटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये हम समझता है। तो ये कारण है हम रिजू जी को अगेंस्ट है। और हम सोचते हैं कि मेरा सोच सभी रखता है, खोल के आने नहीं चाहता है। अब किसी को तो आना पड़ेगा, तो ये है। और उसके अलावा ज़्यादा बोलेगा तो फिर ये होगा, आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रिजू जी का जीरो में नील है, सच में जीरो में नील है। आप पूछिए उसको 2004 में हम लोग इतना बहुमत से जिता के जीरो से प्यार दे के भेजा है 4 में, और 2009 में यहाँ में 2009 में सेंटर में भी कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस, और यहाँ भी पादरिचो साहब जीता था। फिर भी उसको सबसे ज़्यादा वोट हमारा जीरो से मिला है 9 में। हालांकि हार गया है। वो कहाँ से हारा है? कुरुंग में से हारा है, क्योंकि तकम संजय उसका कंटेनर था। और कहाँ से हारा है? अपना जगह से हारा है, वेस्ट कामिंग से, थुआंग से। हाँ, अपना जगह से हारा है, मोन रीजन से 2009 में। तो और 2014 में हमने इतना वोट दे के जिताया है, 19 में इतना वोट दे के जिताया है। अब 2009 में कुरुंग में अगेंस्ट किया है, कुरुंग में बहुत ख़राब से हारा है, इसीलिए उधर ही ज़्यादा डेवलपमेंट दे रहा है। हाँ, और उसका मोन रीजन में भी वो ख़राब से हारा है, इसीलिए उधर डेवलपमेंट दे रहा है। हमारा जीरो में उसको ज़्यादा प्यार करता है, बल्कि गारंटी लेके हम गारंटेड में लेके हम लोग को डेवलपमेंट एक्टिविटी भी उसका यहाँ में नील है। उस दिन वो यहाँ में कैंपेन के लिए आया था, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना। उसका डेवलपमेंट एक्टिविटी लाने वाला सिर्फ पंगे है। पंगे का अलावा वो कुछ भी नहीं बोला है। पंगे को लाया है। पंगे जो था, पंगे जो वाटर ट्रीटमेंट जो है, वो तो रिचू साहब का समय से वो प्रपोजल दिया है। आप दूसरा को भी पूछिए, रिचू साहब का समय से वो पानी के लिए ऑलरेडी प्रपोजल जा चुका है। चलो वो ताकि साहब का क्रेडिट ना, उसका क्रेडिट है। उसका अलावा और उसका क्रेडिट क्या है जीरो में? तैली का डेवलपमेंट को लेके जीरो में बात करते हैं, हम तैली में वो कर देगा, हाईवे ला देगा। हमें तैली से कोई लेन देन नहीं है। अब जीरो में क्या क्या वो बताओ ना रिजू साहब, ना ये बताओ। पंगे का अलावा और गिनती करने के लिए कुछ है? तैली का डेवलपमेंट को यहाँ में प्रचार करता है। और आप देखिए जीरो में, आप देखिए उसका MP लेड, हम एक टॉयलेट भी नहीं देखा है। आप लोग मीडिया लोग भी देखिए, बताओ अगर उसका डेवलप MP लेड अगर यहाँ में कहिए इनोग्रेट कंस्ट्रक्टेड फंडेड बाय MP लेड, कुछ नहीं है। वो कुछ भी नहीं किया है जीरो के लिए। तो इसी कारण से भी उसको वोट मेरा ख्याल से नहीं मारना चाहिए। और हालांकि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, तो इसीलिए ये आपको हम मीडिया को भी देगा, मीडिया को ये 2249 करोड़ 626 करोड़ 1014 करोड़ लाया है बोला है। यहाँ में जीरो का कितना है आप पूछिए, हमको मालूम नहीं है। आलू गुट्टी, हाँ ये मीडिया के लिए रख रहे हैं हम, आलू गुट्टी। और ये मीडिया ये रख रहे हैं। और ये फ्रंटियर हाईवे 6621 करोड़ लाया बोला है। यहाँ में जीरो का कितना है? आलू गुट्टी 1 रुपया नहीं है। हाँ रिजू साहब, आप जीरो को प्यार करते बोला है ना। हम लोग बहुत ज़्यादा मारा, इसीलिए तो ये हुआ ना। नहीं तो आपको उधर में कुरुंग में हारा है, उधर मोन रीजन में हारा है, इसीलिए उधर डेवलपमेंट दे रहा है, जीरो में नहीं दे रहा है। और ये देखिए 2098 करोड़, बाप रे। यहाँ में क्या जीरो है? आलू गुट्टी। हाँ ये मीडिया के लिए आप लोग भी, मतलब हम गुमराह नहीं करेगा। और अगर गलती होने से हमको बोल सकता है, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं है ना।
तो उसका बाद ये एक लाया है वो 27 रोडवे 27 रोडवे कंस्ट्रक्शन ऑफ 27 रोडवे स्कीम लाया है 27 हाँ तो 27 में से कितना करोड़ ये तो पक्का पक्की 8,000 करोड़ का होता होगा तो ये है 27 का ये टोटल प्रोजेक्ट ये 1 2 3 4 5 6 से लेके 24 6 से लेके 24 और ये 25 to 27 ये मीडिया के लिए है ना 27 प्रोजेक्ट में जीरो का कितना है आलू गुट्टी यचुली में आता है यजली में आता है कुरुकुम में आता है फिर यहाँ से ऊपर उड़ के रागा में जाता है और उधर क्या बोलते हो जो अपर सुबनसिरी में जाता है जीरो का एक भी नहीं 27 प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ समथिंग तो अब बताइए जीरो में क्या डेवलपमेंट लाया आप तो इसी कारण तो जीरो में वो नील है वो कि डिलिमिटेशन में इन मादारी थ्री तो किया और डेवलपमेंट में भी उसका हिस्सा नहीं है तो हम क्यों वोट दें उसे हाँ तो इसी कारण से हम चाहते हैं कि जीरो वासियों अपतानी ngunu tamu pa make ngo tamu agi tamu pa la pa luma ho tamu ka aya sekolah luma ho si ko jiro pake ichu cherong kem koda इसे ngunu इसे तोंसर साल एक बार तो सबक जीरो में हराना है जीरो में लुला लला होंगो पदा वाजिम नो लुतिtai thank you good evening Melanjami first of all ngo soloka briefing so ngka political stand mingo lukuluri bala luchla last hem kane days of la few days of la ngunu continuous review ka against to mananje bot bio ala lukan do makan do lead makan do utare lead numba mananje reminder ako bunyanga mananje ka rally in mi ngun ka heru mi khami reminder ako bila ngunara kosto pe inka to ke mananje hempa kusa against mubasala mala entire tanu ngun mubasala muksa ala wan tanu pa ilang muksa ala sabak ako sigasa ala sis aban tamang ko lukoso halang ngunu mi continuous so sipu inkan rank kale mi utong nge mi ape political motivated to la kelo do ngo ka political motivated me na ta pe ngo political motivated don la him ngo ngelu piola lupio abla luchi ngo si present to NPP ka district president NPP officially announcement to do sunya rijijumi bot kinola NPP ka party ka boss head ja national ka head ja congress sangma meghalaya ka CM tare mo tare tweet lamu to do officially letter kerin to do arunachal onam ka nesnya voters da NPP ka members da mananje rijijumi bot ka hala kerin to do arunachal ka mun state president state secretary mun ka kerin to do rijijumi NPP bot bikino kela kerin to do ngomo against mulda nuko ya si ka ngimia pon mulla la no riju ka favor against mu masala hala pon atola hala mono ko party okla che action akino ke tola him dringo frankly lubdu tanu community ka issue pa ngo political ka ngoya tanu community issue ngo sacrifice mala ke making ka political benefit pa hala him lo either ngimi ngoya terminate yamda to ngo ya pir ngo je regeneration no hala ngo lu ka mo mula nula because tanu ka issue pa la ngun tanu pa la hu pa se politics join sudne tanu ka ayasa ko na tanu mi magla kinana hu pa se politics join lakson tanu nuna laal bula kinana hu pa se politics join busdona si political benefit pango nila pe ngomo don la hala ngo ka taribula huna ngi political benefit palu donne ngo NPP mi regeneration mishi lalu la do in case ngo problem do ko mo problem do ko jodi hala ngo lo bla do firstly or secondly si aban tamum la num lamni ko bodo mo tare je ba tanu pa lo da hela aya ka spokesperson la mi mo ka pura confusion create mo hoi dula him ter mo reason mot do anyway now moving ahead हम दो चीज में हम फोकस करना चाहता है तू तब उस तुनियो ना फोकस में हैंडल दो मते इंटरफेरेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस रिजिजू का इंटरफेरेंस ना दोने जबरदस्त पंगुन इंटरफेयर माला सकाता मी डिलिमिटेशन मी पाइकेन ते माके जीरो मी आने पदो केन ते माकेला इंटरफेयर ako माने आने पदोन से नॉन इंटरफेरेंस मुन मी का भाषा को जगह न मु मुनु का रिप्रेजेंटेटिव ताने का रिप्रेजेंट ताने मो बोत दो बाकी मिसा ना तरत तो मो कमोन मी उतर दो गालो मना तो जो मुनु का रिप्रेजेंटेटिव मो मुनि भाषा सा को इंटरफेयर मुसा को हरा पकली मो कम मान फर्स्ट मो मी कांगो तय पेंदो ने से का पोता सिंगो बुदो ने 2005 ओ 2001 ओ का 2002 सो डिलिमिटेशन एक्ट आला लाला सो डिलिमिटेशन मुक्ते
रीएडजस्टमेंट तैला पूरा इंडिया सो कोनो पूरा भारत हो रीएडजस्टमेंट मिमुक दुपाला डिलिमिटेशन का रीएडजस्टमेंट मिमुक दुपाला हला होइला दोते कल होइल दोई को अरुणाचल हमला मगला दोते रेस्ट ऑफ द इंडियन तम मगला दोते अरुणाचल हो सिम का तिपा निबो रिजिजु दा तिपा बन हे कताइमो रिजिजु कोन मा पा मोन एसोसिएट मेंबर्स दुने डिलिमिटेशन का एसोसिएट मेंबर्स दुने एक एमपी कताइमो तापिर गावनी रिजिजु साहब नि मुआनी दोते मुआनी आगे हरा 5 ता एमएलए मोल का मेंबर पदुला हला सी तिपा तोल दो क्लियरली से का सी रिजिजु का सिग्नेचर क्लियरली मेंशन तोल दो ओ पकोलो रिजिजु चाय को मसिम तका के सिन का साइन पे साइन में पे सिम तका के ने वाई सिन का साइन को नंग बना मुन मिति पतुनेला क्लियरली सो केटला गरो कि अरुणाचल हो सिसी डिलिमिटेशन मुगियो लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आकिनो केला ते लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नंग बयो आकिनो मु आतो बुसो गलास मु आतो का सीट में बसा दो पाला मी मे भी अलग ट्राइब आता मो का जगह मोन एरिया आता मो मी डिलिमिटेशन मुगी लुतलो मो पर्सनली लॉस के नुदो हो जलो मु मुन की तरह रिप्रेजेंटेटिव मुन मी मो सैक्रिफाइस मतेला मी का इंटरेस्ट तो मो मी दो फर्स्टली सी इंटरफियर मु आउ मसो इंटरफियर मुंपा डिलिमिटेशन कमीशन नता होइल दो नता मंगुन जिरो अन्य भी तो कुल दोन मी हिमी सी मो रुखा ने भी तो दोन मी मो बिकने की सने मो जबरदस्त इंटरफियर मुल्ला लला बियोलो दा हल इंटरफियर मुल्ला ला उनका साइन लो ऐसे यहां बिला मो डिलिमिटेशन कमीशन में मो बितु सी मो का इंटरफियरेंस मुदिंग के लिए उनका माता इला मुने सेकंड नॉन इंटरफियरेंस दोन सी 2020 से का आसियानो इंपोर्टेंट ओके एवरीबॉडी से मलांजे ऑपोजिशन पार्टी तनुल दो रिजिजु की गलती मासनिया स्टेट का गलतीनिया ऑल पार्टी मीटिंगोस ने ममती पबसने ऑल पार्टी का मीटिंग स्टेट लगी मालो दोपा रिजिजु न तवा बिकिनो ने हाला मलांजे तगनेलो ऑल पार्टी मीटिंग निदो ना मतने का को 5 जून 2020 यो सीता न तंबा आदर दो कोरा 2020 यो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट महामंत्री मो लुकला सो अरुणाचल सो डिलिमिटेशन मुक तोकतेला 2008 ओनुन की रुखा बने को के उनुन के लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के दोकिनो हला रुखा बने के सीसी लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इचे तयिकमा के अरुणाचल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुक तोकतेला उनका राष्ट्रपति मुक तोकतेला हला तोलो हला मुक तोकतेल यांग के ले हो का ऑल पार्टी मीटिंग 20 जून ओ दुलाला लाला 2020 का जून ओ दुलाला ला मोलो मुग योला ऑल द पार्टीज आता ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज साइन मुल्ला ला मोलो बिते सेंटर में बिते सो क्वेश्चन आपको आ रहा है मोल को ऑल पार्टी का मीटिंग और मोल का साइन नहीं लगा तो लगा क्या अंकल 2021 का सेंसस पॉपुलेशन सेंसस मुगी को है कैसा पमक तो तेला हला मोल पता केल तोल दो वही में मोल एक्सेप्ट मल्ला लाला रुखा बुबने हरा पकली से रुखा तोल दो के सो मोलू पाएंदो ने फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट का डिलिमिटेशन का सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट माके स्टेट का 60 एमएलए तिपा से चलो पा 59 एमएलए तिपा से चलो पा गांग भी नाम के सी प्योरली सेंटर सब्जेक्ट पाई दो पार्लियामेंट दो कलो सने बस्तु सिमी लुपा कोरा रिजिजु मो सिमी लीड मगला पार्लियामेंट तो मो लुकिने सिमी मा डिलिमिटेशन मुक के नरोदा के अरुणाचल केला स्टेट ओनली दो हेमी केयर मुकीमा एंड सेकेंडली सो रिजिजु मो आज क्लियरली चिंदो जे कि सी 2021 का पॉपुलेशन बेसिस पॉसिबल मा होई तो होइला किमा बिकॉज उनका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब हो उनका संविधान के हिसाब हो ओनली एंड ओनली 2001 का पॉपुलेशन बेसिस हो लेकिन चलो हो 1 हिसाब होई मा कोरा 2026 हो डिप्रीज होई कुल्ला लाला 2031 का बेसिस हो होई केसन 2031 का पॉपुलेशन बेसिस हो डिलिमिटेशन होई केसन सिमी रिजिजु मो चिंदी चिमदोला 2021 होई के मा 2021 का पॉपुलेशन के हिसाब होई के मा चिमदोला मो आदमा दु मो एसन मुन का रिप्रेजेंटेटिव सो नॉन इंटरफेरेंस ना दोने सो मो इंटरफेयर मुकिने एमएलए तमी लुकिने मा सिनुनु लुखारो के सो डिलिमिटेशन 2021 का पॉपुलेशन हिसाब बिलामा के उनका लेटर के तीनों पर लेटर के इट्स सेल्फ रोंग दो के सीपी पर जलो पा 2001 पॉपुलेशन सेंसस हो हला से के बिला के स्टोन या फिर सिमी 2031 का पॉपुलेशन सेंसस हो के बिला के स्टोन ला हला मो एमएलए तमी तो से केने मो ऐसा उनका लीडर हिसाब पर उन में रिप्रेजेंट बुदन है कैसा तो से केने लेकिन इसमें भी ये जो है क्लियर कट इसमें जो है हम लोगों को रिजिजू का फेलियर दिखता है उसका सेकंड मदरली ट्रीटमेंट दिखता है टुवर्ड्स अपतानी कम्युनिटी क्योंकि उसका नॉन इंटरफेरेंस की वजह से फर्स्ट 2005 में इंटरफेरेंस कि हम लोग को देने नहीं देगा सेकेंडली उसका नॉन इंटरफेरेंस जब हम लोग को हटा रहा था तो उसको वहाँ भी आवाज़ उतारना चाहिए था तानी के लिए आवाज़ उतारना चाहिए था और इस चीज़ को भी उसने नहीं उतारा है और थर्डली एक चीज़ एक सेंटिमेंट ये है कि हम लोग जो ये मेरा पर्सनल सेंटिमेंट है लास्ट उसको 4 टेन्यूर में उसका 3 टेन्यूर में से 4 बार उसने कंटेस्ट किया है सिंस 2001 से कंटेस्ट करते आ रहा है सॉरी सिंस 2004 से वो कंटेस्ट करके आ रहा है
सिंस 2004 अपातानी कम्युनिटी से रिजिजू को हमेशा हाईएस्ट वोट मिला है। मेजोरिटी ने हमेशा रिजिजू को सपोर्ट किया है। लेकिन सिलो आलो रिजिजू का क्लोज हो मो का पीए तनमी अकोदा पे मो का क्लोज हो एक जोन म्यू नाम लुका तो जलो अकोदा चिंकी मा सिलो तनमी रिजिजू में एक्सेसिबल मा रिजिजू में लुरना नो जलो पाइना नो जलो अको का अकोदा तनमी मो क्लोज हो यमा हम गन तनमी मो मेंदो पीए अकोदा तनो क्लब मा क्लोज म्यू अकोदा तनो मा रिजिजू दारे तनमी उपा लाइक नॉट रीचेबल नो मोबाइल नेटवर्क का नॉट रीचेबल चिकम पा मो नॉट रीचेबल तोलदा उल्टा सो पेमा खानु चिका सीएम चिका मो मिया पाइते हेनो कोरा तानी मिउ कम से कम 500 जंदा हु पेमा खानु में अनो क्लोज पा फिर चिका अकोन पोन मुल्ला लाला खानु सब सो दा पे अन ता मो पाइ केनो हर जल अक पाइ को जाका दो मो का क्लोज हो सिक्योरिटी ओकला मो खाबला मो का ऑफिस लेवल ओ खाबला मो तानी मो अबु जे बुदो बाकी कोने अभी मिनिस्टर आगे तास तुपा का तानी मिउ अक्वानी का मुन के मिउ दान्या दा रिजिजू में मैच लकमा डायरेक्ट नॉट रीचेबल एक अपतनी आदमी नाम बता के देखो जो रिजिजू का क्लोज है नहीं है। अगर रिजिजू तमिल को प्यार करता था बोलने से कम उसका एक पीए एक अपतनी होना था या फिर एक क्लोज एक आदमी को अपतनी एक को रखना था सुनो लोई पर मीमा के सका पॉइंट हिंगे में लुल्ला लाला मोसे सी मीडिया तमी एनी क्वेश्चन नो कोदा क्वेश्चन आंसर का नुन को लता तका रो कोदा ला सकने माते ओ नुन का क्वेश्चन नो को लोका का रिजिजू का न ना लो तोल दोन मीडिया हिम मलंग में क्लैरिफिकेशन रूपा अपॉर्चुनिटी भी पे में कोई क्वेश्चन मीडिया सर लास्ट टाइम जब किरण जी सर ने यहाँ पे विजिट किया था जीरो पे उसके बाद जितना यहाँ का एनजीओ जेपीएम है उन सबका भी कहना है कि इस बार लास्ट किरण जी को अगर सपोर्ट करता है तो शायद इस बार डिलिमिटेशन के लिए बहुत चांसेस है। और अभी जितना भी जेपीएम है एनजीओ है वो सब जो पहले उनको बॉयकॉट कर रहा था उन्हीं लोग अभी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ अभी हम पहले बोला है सब जोकर बन गया है जो पहले जोकर कपड़ा पहनाया हुआ है। देखिए रिजू जी कब आया था जीरो में 2019 को इलेक्शन कैंपेन के लिए आया था। उसके बाद तो आया ही नहीं। दिल्ली में आया नहीं आया ना कभी दिल्ली में नहीं आता है। म्यूजिक फेस्टिवल में तो आया था। जीरो को देखना है मेरे जीरो का म्यूजिक को पसंद है जीरो को पसंद है तो म्योको में आओ ना दिल्ली में आओ ना। तो 19 में आया है और उसके बाद म्यूजिक फेस्टिवल में आया उसके बाद अभी आ रहा है। अब देखो ऐसे जिला लुक हो या जो भी हो गुमराह करने से नहीं होगा। वो कोई पोर्टफोलियो पकड़ता होगा भाई कंपेल होता होगा ऐसे नहीं करने से ठीक है। अब हमने दावे का साथ कह सकता हूँ और 19 का बाद अभी 24 में आया 24 का बाद 29 में ही आएगा उसका पहले वो नहीं आएगा क्योंकि कैसरी है उसका जीरो में और दिल्ली में भी नहीं आता है। तो अभी का जो जिला लुक ये जो है लास्ट बार बहुत हो गया। अभी जैसे पहले हम बोला है वो कुरुंग में से हारा है तो उसको डेवलपमेंट दिया है जीरो से हम लोग इतना एक बार हम लोग हराएगा तब जाके हम लोग को डेवलपमेंट साइड मिलेगा नहीं। तो ये लोग का बात ऐसे जिला ये लोग नहीं बोलने से अच्छा है। और जो जिला लोग जो जिस तरह से चेंजेस हुए ना वो सबसे पहले तो उसमें एक लीडरशिप का हम लोग का ताने का एक लीडरशिप का उसको डेफिनेशन को दिखाई देता है। ताने लोग को सच में बोलता है उन मिलो उमरी के ऐसे बोलता है। ये लोग बार बार उस चीज़ को प्रूव कर रहा है खुद से बार बार अपना पाँव में कुल्हाड़ी मार रहा है। बार बार हम लोग ताने लोग जो जैसे बड़ा भाई बोल रहा है जोकर बन के जैसे इतना इजीली हम लोग को मतलब दो थोड़ा सा दिखा देता है बोलने से ऐसा महक जाता है ऐसा वाला। अपना स्टैंड में क्लियर करना अपना स्टैंड रखना जो है वो एक लीडरशिप का क्वालिटी होता है। वो लीडरशिप का क्वालिटी हम लोग का लगता है कि तानु जेडपीएम से बहुत जरूरी है। जेडपीएम आपको बुनियांगा इतना करो का रैली में को मो उनु 2024 लो पा डिलिमिटेशन मिलागी मा सोई मोइना अंदर लगी डोला ऐसा बड़ा स्टेटमेंट देता है। 6 मंथ्स में उसको डिलिमिटेशन चाहिए वो बोला था और 6 मंथ तो कौन तुम पा 2024 हो 6 मंथ अंदर डिलिमिटेशन भी महिम लो 2024 हो नम कर तानु अना खादा मो लीड मुगला सो तानु हो रिज्यू के अगेंस्ट कैंपिंग में चिलू ने चलो उल्टा पाई तो कुल दो को तो उसका बोलना जो है 2026 को डिलिमिटेशन मिलेगा बोलना जो है एक बहुत गलत है। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि आप लोगों को समझा दूं 2026 में डिलिमिटेशन गुण पाई के मके 2026 जो डी फ्रीज होगा वो भी डिलिमिटेशन। देखो डिलिमिटेशन दो चीज़ होता है। आप लोग भी पूरा मीडिया वाला लोग भी मालूम नहीं होता होगा। दो टाइप का डिलिमिटेशन होता है।
एक डिलिमिटेशन जो है जो 2001 को जिसको फ्रीज किया था, उसमें जो है डिलिमिटेशन जो नंबर में इंक्रीज करने के लिए बात करता है, नंबर उसमें इंक्रीज होता है। तो सिंस 1971 से नंबर जो इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि साउथ इंडियन लोग जो है बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साउथ इंडियन लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंक्रीज करने से, पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से इंक्रीज करने से साउथ इंडियन हो मोलू एम बी किंकुमा नॉर्थ के बुस्का बाब दोकिनो को नॉर्थ इंडिया के पॉपुलेशन आउट दोलाला हो पर 1971 ओकला 2001 ले रुखा बने 2001 ओकला 26 ले रुखा बने हो। चलो ये एक डिलिमिटेशन हो गया जहाँ नंबर इंक्रीज करना है, लेकिन बार बार ये चीज़ को रुका रहा है बोलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मला मोलू अंडरस्टैंड कुला सी बार बार रुका भी। लेकिन इंडिया में अभी माइग्रेशन बहुत हो गया, तो अर्बन रूरल से अर्बन में बहुत चला गया, पॉपुलेशन शिफ्ट बहुत हो गया। इस चीज़ के लिए उन लोग जो है डिलिमिटेशन एक्ट 2002 निकलता है, और उस एक्ट के हिसाब से नंबर इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ रीएजेस होगा। एमएलएस का नंबर इंक्रीज नहीं होगा, एमपीएस का नंबर इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ रीएजेस होगा। उस रीएजेस में पूरे इंडिया में करते हैं, और हम लोग का जीरो में भी करता है, और जीरो में हम लोग को 17 जीरो और 18 हापोली ऑलरेडी हम लोग को प्रपोजल डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टडी मुल्ला लाला बितोकुल दोकुली मिसना रुखा तोल दोस्तों ने बीमारा ऐसा नहीं है। हम लोग को ऑलरेडी दे दिया है, प्रपोजल दे दिया, वो भी कौन दिया है? डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया सर्वे मुल्ला लगुने बितोकुल दोकू है, बितोकुल दोकने में रुखा हो तोला बूदो। हम लोग बोल रहे हैं कि ये 60 का अंदर में ही हम लोग को 2 एमएलए चाहिए। जब 60 का अंदर में 2 हम लोग को दे चुका है, और ये कौन दिए? हम लोग को ये हक देता है, ये राइट देता है, कॉन्स्टिट्यूशन दिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बड़ा और क्या चीज़ है भाई? एक तो पार्लियामेंट हम लोग को इसको दिया है, तो उस चीज़ को अपना हक को मांग रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी से छीन रहे हैं, किसी का खाना को हम लोग जो है छीन के हम लोग को चाहिए बोल के नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बस ये बोल रहे हैं कि जो हक का खाना है मेरा, जो हक का चीज़ है, बस हमको उतना दे दो, बाकी आप लोग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे। तो ये तो डिलिमिटेशन 2026 को अभी फिलहाल होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें जो है साउथ इंडियन लोग जो फिर प्रोटेस्ट करेगा, फिर एक्सटेंड होगा, यही होगा। हम जितना विश्वास करते हैं ऐसा ही होगा, और नंबर इंक्रीज होने का। और उस दिन भी सीएम साहब भी बोल के गए, रिजिजू भी बोल के दिया है कि नंबर इंक्रीज होगा बोलकर। नंबर इंक्रीज नहीं होगा, और नंबर इंक्रीज होने से जैसे अमन तमा बोले वो तो हम लोग को मिलेगा ही, उसमें आपका क्या मदद चाहिए? इतना करोड़ जीरो में क्या है, वो तो देगा ही है। और रुका से इतना करोड़ उसमें उन लोग को मदद भी जरूरत नहीं, उनको हम लोग को मिलेगा ही है। लेकिन हम लोग को जब 60 से 90 बनेगा तो 2 क्या हम लोग को 3 या 4 उस हिसाब से जो पॉपुलेशन रेशियो होगा उस हिसाब से फिर हम लोग को चाहिए होगा। और वो भी अभी जो है, पहले बात तो ये इंक्रीज क्यों नहीं होगा बोलने से ना, फर्स्टली 60 एमएलए होने के लिए कम से कम 20 लाख का पॉपुलेशन चाहिए होता है। हाँ, हम लोग का 20 लाख के लिए एलिजिबल भी नहीं था, तब भी हम लोग को 60 एमएलए दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी सेकेंडली 2031 का सेंसस के हिसाब से हम लोग को 20 लाख का आसपास में हम लोग को होगा, इसलिए हम लोग का सिर्फ 60 एमएलए से आगे बढ़ेगा ही नहीं। अभी जैसे बड़ा भाई बोला है कि दिल्ली के 3 करोड़ पले दो, फिर कोई है 70 एमएलए से, हम लोग का कहाँ से बढ़ेगा? भरने का जगह नहीं है। और अभी जो भी हम लोग का मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ हम लोग का जो है 2002 का एक्ट का हिसाब से, डिलिमिटेशन एक्ट के हिसाब से हम लोग को 60 का अंदर में हम लोग को 2 मिल सकते हैं। जो लास्ट ईयर हम लोग को जिस तरह से रीएडजस्टमेंट हुआ है, लास्ट ईयर भी वो हुआ है, इस बार हम लोग को चाहिए हम लोग को ये। तो सर अगर इस बार भी अगर किरण रिजिजू जीत जाता है बोलने से, तो आप लोगों का स्टेप क्या रहेगा? किरण रिजिजू जीत जाता है बोलने से हम लोग डिलिमिटेशन का फाइट अभी जो है थ्रू कोर्ट जो कर रहा है, स्टैंडिंग डिलिमिटेशन कमीशन जो है कोर्ट का थ्रू से कर रहा है, वो कोर्ट का थ्रू से जारी रहते रहेगा। और डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग का हमेशा कंटिन्यू लागू रहते रहेगा। तो बाकी तो रिजिजू जीतो या ना जीतो हम लोग को देखने वाला तो है नहीं, तो इससे हम लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क कब क्या पड़ेगा बोलने से, फ़र्क तब पड़ेगा जब पूरा एंटायर आपातानी कम्युनिटी जो है एक साथ सब लोग उसके अगेंस्ट में वोट मारकर एक साथ उसका कान का नीचे जोर से चप्पल लगाना। और जब्बर कैसा लगाएगा उनसे, उसके अगेंस्ट में वोट मारकर। हम अकेले उसके अगेंस्ट में वोट मारने से मेरा कोई वैल्यू नहीं लेगा, लेकिन पूरा आपातानी उसके अगेंस्ट में वोट मारते हैं उनसे, तब उसका कान में आवाज़ गूंजेगा। किसका आवाज़ गूंजेगा? आपातानी का आवाज़ गूंजेगा। ये आवाज़, उस आवाज़ जो क्या कह रहा होगा, वो आवाज़ जो बोल रहा होगा कि देखो रिजिजू आपातानी को ग्रांटेड में मत लो, ये वो आवाज़ होगा। तब जाके वो जो रियलाइज़ करेगा कि हाँ आपातानी को हम जरा मिसट्रीट कर दिया क्या बोलकर, वो रियलाइज़ होगा। सर जैसे कि आपने बोला कि ये 2026 में डिक्रीज होने वाला है डिलिमिटेशन का, और जैसे कि एमपी और सीएम ने वादा किया है कि वो होगा, जैसे कि आप बताए कि 60 से हम लोग का ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो उन लोग का जो प्रॉमिस दे रहा है, तो हम लोग जो रीअरेंजमेंट होगा जो सीट का ना, वो कैसा होगा अगर पता है? उन लोग जो है जो बोल रहे हैं ना, उन लोग बोल रहे हैं कि प्रपोजल देगा। उन लोग बोल रहे हैं कि प्रॉमिस करता है कि हम लोग प्रपोजल देगा 60 का जगह 90 देने के लिए। वो प्रपोजल दे रहा है ना, गारंटी नहीं है ना उस चीज़ का।
गारंटी तो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन दे के रखा है, तुम लोग को 2 MLA डिजर्व करते हो के, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी दे के रखा है वो गारंटी को तो फुलफिल करके देख लो। फ्यूचर का गारंटी को छोड़ दो ना, प्रेजेंट दो नहीं में गारंटी भी तो दो मैं आगे दो किनो के ला ठीक है, गारंटी भी तो ला दोनों में एग्जीक्यूट मिला मा कहाँ से एक्स्ट्रा प्रॉमिस को लेके आता है, वो कोई क्वेश्चन वो बनता ही नहीं है वो चीज़। So, स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर डबल इंजन सरकार बनेगा तो अरुणाचल के लिए और बेनिफिट्स रहेगा। डबल इंजन सरकार तो 2019 से है, 2014 से है। तो उसी तरह इस बार भी अगर एक किरण रिजिजू को वोट देता है तो शायद से आप पता नहीं पीपल के लिए बहुत फायदा रहेगा, ऐसा कहना है। इसीलिए हम ये दिखाया था। और डेवलपमेंट वो नहीं ला सकता है ऐसे नहीं है, डेवलपमेंट ला सकता है। रिजू जी भी बहुत स्मार्ट है और ये है, लेकिन जीरो के लिए हानिकारक है। इसीलिए तो ये दिखाया, ये मीडिया के लिए हम रखा हुआ है। जीरो में आलू गुट्टी है, पैसा तो आता है लाता है, जीरो के लिए नहीं लाता है। तो डबल इंजन का क्या फ़ायदा जीरो के लिए? तो और अरुणाचल का हम कुछ नहीं कह सकते, ये मीडिया के लिए। हाँ, ये बेसिकली ऐसा हो गया ना, इट्स वेरी सिंपल थिंग यू नो। एक आदमी तुमको बार बार चेहरा में धुलाई दे रहा है ना, हर साल आके तुमको पंच ही मार रहा है, फिर अगले साल फिर बोलेगा और एक बार पंच मार लो और एक बार मार लो। अरे आप लोग का ईगो हार्ट नहीं होता है क्या ना? आपको इतना धुलाई दे रहा है, फिर एक लास्ट मौका, फिर एक लास्ट मौका, कितना मौका देगा? लिमिट होता है ना। उसको 15 साल मौका दिया है, एंटर अपातरी कम्युनिटी ने उसको 15 साल मौका दिया है, और 15 साल बहुत लंबा टेन्योर होता है। 15 साल का अंदर में वो जब नहीं कर पाया है, अभी कौन सा उम्मीद है कि वो कर पाएगा? ऐसा कोई वो नहीं है, उससे उम्मीद ही नहीं है। तो ये लोगों का कहना है कि आप दोनों आगे आपस जो है अभी फिलहाल में वो रिफ्यूजी के लिए कैंपिंग कर रहे हैं, और उन लोग ऐसे लोगों का कहना है कि जितना भी सेंट्रल स्कीम्स आते हैं वो जीरो में जितना भी हमको डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वो जो ट्रू चेन होती है, अगर ट्रेन रिफ्यूजी नहीं होता तो ये सब भी देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह का अगर होने से, अगर ये जो जीरो का डेवलपमेंट प्रोसेस अगर देखा जाने से, इन केस हम रिफ्यूजी को नहीं देता तो 5 years हम लोग ड्राई में देगा, इस तरह का मतलब लोगों का कहना है। उसको लेके आपको क्या बोलना है? बहुत अभी गलत। बराबर हम वो आपस में अकेला ले आ सकेगा ना, रिफ्यूजी का हाथ चाहिए होगा। अभी बराबर दिखाए आप लोग को, कुछ प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है। 6,000 करोड़, 10,000 करोड़, 2,000 करोड़, इतना सारा प्रोजेक्ट दिखाया है, उसमें तो एक भी लेके आया नहीं जीरो के लिए। फिर भी जीरो तो सस्टेन हो रहा है ना, और डेवलपमेंट भी बेहतर हो रहा है ना बाकी का जगह से, है कि नहीं? ये चीज़ तो सब एडमिट करते हैं। पूरा अरुणाचल में हम लोग को स्मार्ट सिटी भी नहीं दिया है। पासीघाट क्यों डेवलप हो रहा है? स्मार्ट सिटी 100 करोड़ का उसको प्रोजेक्ट मिला है, हम लोग वो भी नहीं मिला है, फिर भी हम लोग सबसे आगे जा रहे हैं ना बाकी के कंपेयर में। इसमें कोई रिजिजू का हाथ नहीं है। रिजिजू जैसे थोड़ा देर पहले बताया कि वो पंगे का उसको सीखती, वाटर उसको सीखती है। बाकी जो है हम लोग बोलते अप्रिशिएट करना है ताकि साहब को, जिस तरह से सेंटर से वो जो लेके आए बिना रिजिजू के टचिंग का, अपना लेवल में जो लेके आए, क्या रिजिजू सिर्फ स्कीम देता है बोल के नहीं है, वो हम लोग आपा साहब को भरोसा करता है। इस वेरी मेच्योर ये लीडर है, वो उसको इतना एक्सपीरियंस है एज एन चीफ इंजीनियर, बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, वी डेफिनेटली बिलीव दैट कि उसको अच्छा सोर्सेस मालूम होगा, और हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी हम लोग को ऐसा खाली नहीं छोड़ेगा। सर जैसे कि आपने एक ऑर्डर पेपर दिखाया था जहाँ पे तापिर गांव सर और किरण रिजिजू और हाँ, जो हाँ। एमएलएस का जो सिग्नेचर है, हाँ तो आपको नहीं लगता कि इस पे सिर्फ किरण रिजिजू को ही ब्लेम किया जा रहा है, ना कि दूसरा? हाँ, रिजिजू को क्यों ब्लेम कर रहे हैं और बाकी को क्यों ब्लेम नहीं कर सकते? ये हमें जो टोटल 5+2 7 आदमी ने साइन किया ना, लेकिन हम रिजिजू को क्यों ब्लेम कर रहे हैं बोलने से, या में से तापिर गांव तो हमारा रिप्रेजेंट, हम तो बहुत उसको मारता नहीं है ना, बाकी का 5 MLA को हम बहुत मारता है, जो मेंबर था, एसोसिएट मेंबर था। हम तो रिजिजू को बोलेगा ना, रिजिजू को हम लोग बहुत क्यों मारता है? ताकि वो हमारा आवाज़ बने, हमारा वॉइस बने, हमको रिप्रेजेंट करे, हम लोगों को दुख तकलीफ में वो हमारा फेवर में बात करे। इस चीज़ के लिए हम उसको बहुत मारता है, और रिजिजू को ब्लेम नहीं करेगा तो बाकी को कैसा ब्लेम करेगा? सिंस ही इज आवर रिप्रेजेंटेटिव, तभी तो इसको ब्लेम कर रहा है। सर डिलिमिटेशन ही एक वो ऐसा क्राइटेरिया है जो हम अपना एमपी को जज कर सकता है, लाइक, या फिर ये एक ग्रजेस है कि किरण रिजिजू सर ने जो प्रोटेस्ट किया उन लोगों से नहीं मिला, ये एक ग्रजेस है या फिर? नहीं, ये ग्रजेस, आप इसको ग्रजेस मान लो ना, कुछ भी मान लो। ये जो जिस तरह का ट्रीटमेंट किया है उस चीज़ से हम लोग दुखी है, वो सेंटीमेंट है। अभी वो सेंटीमेंट को हम लोग बस दिखाना चाह रहे हैं, और किस तरह से दिखा सकते हैं? एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बस उसके अगेंस्ट में वोट मार के एक डेमोक्रेटिक वे में दिखा सकते हैं, बाकी कोई ग्रजेस बोल के नहीं है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसका बिना? हाँ, अभी का क्वेश्चन जो और क्या था? अभी जो क्वेश्चन जो पूछ रहा था ना, उसमें 2 क्वेश्चन था उसमें। और ये जो सिग्नेचर
हाँ सिंगल मैं वो तो बता दिया था मैं, क्लियर है तो मैं। हाँ ये डिलिमिटेशन को क्यों इतना सीरियस है? आप देखिए, पॉलिटिकली डिप्राइव मीन्स एवरीथिंग डिप्राइव। हाँ, पॉलिटिकली डिप्राइव इज एवरीथिंग डिप्राइव। पॉलिटिकली अगर आप अपाता निवासी है, सोचिए यहाँ अगर 2 एमएलए अगर होता तो इनकम सोर्स पर कैपिटा इनकम अपना से आगे हो जाता ना। तो पॉलिटिकल डिप्राइव इज एवरीथिंग डिप्राइव। जैसे आप अभी बोला है ना, सिर्फ ये मेन क्राइटेरिया होना चाहिए क्या करना, बिल्कुल यही मेन क्राइटेरिया होना चाहिए। धांधली का सबसे बड़ा इशू जो डिलिमिटेशन है, यही मेन क्राइटेरिया होना चाहिए। अब देखिए, आदि में प्रेजेंट डे में 8 एमएलए, अगर 8 एमएलए को हम लोग का एमएलए लेट सिर्फ एक एमएलए का 3 करोड़ होता है एमएलए लेट साल का, मतलब आदि एरिया में साल में 24 सीआर ऐसे ही आ रहा है, फिक्स आ रहा है। आदि एरिया को डेवलप करने के लिए फिक्स 24 सीआर हो गया। गालो बेल्ट में जो है टोटल गालो का 6 एमएलए, मतलब उन लोग का एक एमएलए का 3 करोड़ बोलकर 18 करोड़ तो उन लोग का में फिक्स आ ही रहा है। और मोन एरिया तवांग और वेस्ट कामेंग में जो मोन एरिया लोग है टोटल उन लोग का 7 एमएलए है। 7 एमएलए में 21 करोड़ तो ऐसे आ रहा है, हर साल आ रहा है। उसी तरह से हम लोग का निशी भाई लोग का जो है 14 एमएलए है। 14 एमएलए मतलब 42 करोड़ तो साल में मतलब ऐसे ही आ रहा है। और हम लोग का जीरो का जो है एंटायर तामिल पॉपुलेशन का कितना आ रहा है सिंगल एमएलए का तरफ से, जस्ट 3 करोड़। अभी वो सिर्फ 3 करोड़ से कैसे एंटर पता नहीं को देखेगा, है ना। तो इसमें किस तरह का एडवांटेज होता है, किस तरह का हम लोग पॉलिटिकली डिप्राइव हो रहा है, ये चीज़ को हम लोग समझना चाहिए। और किस तरह का डेवलपमेंट हम लोग इसमें हम लोग का नुकसान हो रहा है ना, इसको समझना चाहिए हम। तो जैसे कि जो हमारे कलीग ने आपको पूछा बताया कि यहाँ के जो एमएलए अनअपोज हुआ है इस बार, और जितना भी यहाँ के जो स्कीम्स डेवलपमेंट आते हैं किरण रिजिजू के द्वारा ही आता है। तो इस बार जो पब्लिक लोग का भी अभी जो कहना है कि जो यहाँ का जो एमएलए है, जीरो का जो एमएलए जो अनअपोज है ना, वो भी एक रीज़न था ताकि उन्हें मिनिस्टर के लिए अप्रोच किया जाए। और सिंपल एमएलए रह के वो कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा जीरो में। तो इसीलिए इस बार भी जो है अभी किरण रिजिजू को सपोर्ट करते हुए डेवलपमेंट के लिए सोचे। तो आप क्या कहना चाहेंगे जीरो के? ये ना आदमी लोग को ना सपनों का गोली खिलाने का आदत हो रहा है पॉलिटिशियंस लोग को। उन लोग जब इलेक्शन आता है हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, उन लोग सपना का गोली खिलाता है। वो सपना का गोली खा के हम लोग इमेजिनेशन में बेच जाता है कि ये मिलेगा वो मिलेगा। मिलना होने से मिल जाएगा, उसको जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। हमारा अरुणाचल जो है उससे इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है चाइना का साथ। तो फंड क्यों नहीं देगा? रिफ्यूजी हो या ना हो, फंड तो मिलना चाहिए। और तो ने उसका पॉकेट से दे रहा है। जीएसटी, इनकम टैक्स हम लोग भरता है गवर्नमेंट को, तब जाके देता है ना, है कि नहीं? तो इसीलिए आपा साहब का सोच भी अच्छा है और मिनिस्टर बने। हम चाहते हैं, हम आपातनी में तो एक मिनिस्टर इतना पॉपुलेशन को देखने के लिए तो देना भी चाहिए। पेमा खान ये चीज़ को समझना चाहिए। और जहाँ तक उसका बात है, वो भी अनअपोज एमएलए तो उसका पार्ट को भी हम लोग समझता है, जो रिजिजू के लिए जो प्रचार कर रहे हैं उसको हम लोग समझता है। और बीजेपीएन जो अभी पोर्टफोलियो लेके बैठा हुआ है उसको भी चीज़ को समझता है कि वो लोग के पास जो पोस्ट होल्ड करके बैठा है। लेकिन हम जीरो बीजेपीएन को एक रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि देखो, बीजेपी का आइडियोलॉजी है नेशन फर्स्ट पार्टी सेकेंड, ये बीजेपी का आइडियोलॉजी है। तो इसीलिए बीजेपी लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय, उसको अभी के लिए छोड़ दो। नेशन फर्स्ट पार्टी सेकेंड, आने जीरो की जय पहले बोलो ना, उसके बाद पार्टी में जाओ। आने जीरो, भारत माता तो इंडिया का बात छोड़ दो ना, बस आने जीरो के लिए बोलो, आने जीरो की जय, ना कि भारत माता की जय। क्योंकि आपका आइडियोलॉजी कहता है कि फर्स्ट नेशन देन पार्टी, उसके बाद पार्टी पे जा। जीरो के लिए अगर आपको सोचेगा तो आप रिजिजू जी को बहुत ही नहीं मार पाएगा। मारते समय हम कहता है कि 19 को जब वोटिंग मारने जाएगा, डिलिमिटेशन प्रोसेस में जो जो किया है एक बार वो दिन को याद कर लेना। और दबाते समय बीजेपीएन लोग भी जो पोर्टफोलियो लिया है और बिल्कुल आने जीरो के लिए सोचना, और पार्टी तो चलते रहेगा। आप लोग सोचिए, एक जैसे मुक्तो, जहाँ से हमारा सीएम साहब जो निकलता है, मुक्तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल वोट्स जो है लास्ट ईयर का जो देखा जाने से 6,900 वोटर्स था टोटल वोटर्स, जो उसको रफली अराउंड मिलता है 4,300 समथिंग मिलता है। 4,300 जैसे मिलकर वो जो है एमएलए बन के सीएम बन जाता है। अब अनिनी का आप लोग सरप्राइज होगा, अनिनी में लास्ट ईयर टोटल वोटिंग टर्नआउट जो है 3,700 वोटर्स था, एग्जैक्टली बोलते 3,744 वोट्स आए।
3744 वोट्स में से जो जीता है उसको 2000 समथिंग वोट्स मिलते हैं और वो एमएलए बन के आता है। हम लोग का यहाँ में कितना वोटर्स है? 27,000 वोटर्स। मेरा 27,000 वोटर्स है। मेरा ताजंग में 2000 एता ने थे। हाँ, एक ऐसे एक ताजंग एक बस्ती से मतलब इन लोगों का बराबर का ऑलमोस्ट निकल रहा है। तो 27,000 वोटर्स, ये किस टाइप का इनजस्टिस है? और ये जस्टिस को जो है ऑलरेडी ये हक को हम लोग को जस्टिस दिला रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को दे रहे हैं, आप ले जाओ भाई आपका हक है बोलकर। हम लोग को आर्टिकल 170 क्लियरली बोलता है, प्लस बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हम लोग को क्लियरली दे चुका है वो 2 एमएलए के लिए, आप लोग को हकदार है आप इस चीज़ का बोलकर। लेकिन उस हकदार को भी हम लोग जो है ओपनली दिल खुला होकर एंटर तनात भी नहीं मांग सकता है। ये किस चीज़ का, किस तरह का ये मतलब धरना है, किस तरह का ये टिमिड होके बैठना है? ऐसा ऐसा लाइफ आई डोंट थिंक हम लोग का सोसाइटी जो इतना कमजोर सोसाइटी है, आपातनी सोसाइटी इज मच स्ट्रॉन्गर देन दिस एंड इज मच बेटर सोसाइटी देन दिस। जितना भी हम मालूम है जो अगेंस्ट में आज हम लोग का खिलाफ में बोल रहे रिज्यूम बहुत बितोते हैं मुना लून दोनों, उन लोग में दिल में भी खुश दुखी होता होगा। nun ago mulanje bot bitote lus doja lopa voting ti alo kain din nun mulanje ngolui ke bot iche tare mom tikima ke apa sab में against olumai ke apa sab mo एसन बीजेपी एमएलए कैंडिडेट का हिसाब पा एसन बीजेपी एमएलए इलेक्ट हिसाब पा मो आतो का ड्यूटी में मुझ दोके मो मुदा पमो के मैंडेटरी कंपलसरी होता मो कंपलसन होता मुझ दोके मुनु हरा मुन ताने आतु है एसन रेस्पॉन्सिबल ताने आतु हिसाब पा मुनु आतो का हेरुन का किनन पा हरा मुनु रिजिजू में मुन आतो का ड्यूटी में निवाला रिजिजू का अगेंस्ट हो मुन बहुत भी तो पाई किनो के मरांजम बिसा हाला मो रिक्वेस्ट मुझे आरजू एंड वेरियस कॉलेज पहले तो किरण रिजिजू का अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया देखा भी था एंड अभी फिर देखने को मिल रहा है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं कहीं भी हम मेरा देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिकल मोटिवेशन किया है ना क्या लग रहा है आरजीयू का हम क्लियरली बोलता है जितना रूमर्स है सच है हम पता नहीं है लेकिन वहाँ से हमको कॉल आया है बताया भी है वहाँ पे स्टूडेंट्स लोग को एक स्टूडेंट को 1,000 रुपया देकर 2,000 रुपया देकर उन लोग को बुलाया है बोला है। आरजीयू वाला लोग जो है या नेरिस वाला लोग जो है जो भी बाकी का इतना स्टूडेंट्स लोग जो है उन लोग जो है बहुत रिजिजू को नहीं मारेगा सिर्फ उन लोग को ऐसे बुलाया है भैया लोग बुलाया है कुछ खिलाया पिलाया है 1-2 रुपया पैसा दिया है ऐसे ही उन लोग आ गया मना नहीं कर सकते। आप लोग देख भी रहा होगा कि जहाँ उन लोग जो है बैनर लगा के चिल्ला रहे हैं ना सब अपना मुंह छुपा रहे हैं सब मास्क पहन रहे हैं कोरोना खत्म हो गया और मास्क पोस्टर भी नहीं पकड़ सक रहे बेचारा बच्चा लोग जो है। और हम आप लोग को बोलते हैं आप लोग आरजी स्टूडेंट्स को पूछो जो भी आरजी का उस दिन हम लोग का जाने वाला को देखा था जो भी हम लोग को अपोजिशन में ये रिज्यू के लिए बोल रहे थे ना आप लोग जाके पूछो हम लोग जो पेम्पलेट्स आरजीयू का बच्चा लोग जो बनाया था वो हम लोग लेके आए हैं ना पे आरजीयू का बच्चा लोग जो खुद बोला है kalau mun arjo ke isu meeting ayo arjo ke isu na tangun ka lunmi tatela अरे आते पे किसी हम लोग उल्टा प्ले कार्ड्स बनाएगा और क्या प्ले कार्ड्स होता है ऐसे से हम लोग लिख के और कर तो कागज वगैरह हम लोग कुछ लाया नहीं है। आरजू के स्टूडेंट लोग खुद अपना बाइक से पेट्रोल अलगू ला मोलू इन सो दुकान में हाली मला मुन ये आधा घंटा का जाते दुकान में हाली मला बुल बोला मोल आता तो पैसे पूरा केला खुद से उन लोग लिखा है हम लोग कंप्लीटली अगेंस्ट होकर और प्राउडली स्टैंड करते हैं अपना चेहरा और कुछ छुपाने का नहीं है प्राउडली स्टैंड करते हैं उन लोग का खुद का आइडिया है तो इसमें हम लोग का कुछ नहीं है। लेकिन अपोजिट साइड का देखा है तो उन लोग पूरा खुद से रेडी करके चेहरा छुपा के बेचारा लोग को ऐसा फोर्सफुली करना भी नहीं चाहिए। उल्टा हम उन लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि हला फोर्सफुली मुझे कार दो के ये खुद तो कॉमेडी बन रहा है जोकर बन रहा है उल्टा बच्चा लोग को भी जोकर बना रहा है आप लोग। और ये मिलोतम और हम आप जो पॉलिटिकल मोटिव है किसी और के लिए कैंपिंग कर रहे हैं सुनने में आया है मतलब ये इसको लेके रिजिजू को अगर वोट नहीं तो किसको देगा आप लोग कहीं ना कहीं पीछे से आप लोग कैंपिंग कर रहे थे सुनने को मिला वो कहाँ तक सच है? ये एकदम 100% रॉन्ग है आप लोग का जो सुना वाला है। उस दिन जो आरजीयू में आप लोग जाके स्टूडेंट्स को बात कीजिए नेरिस स्टूडेंट्स को जाके बात कीजिए को लोग का मीटिंग हुई सो लाइव दो के ऑलरेडी सो रिकॉर्ड मुतो दो के मीडिया लो मला ओपनली लुतो इस मनाजिम तपन लुतो नुनहुम बहुत ना लुतो और आज भी हम लोग मीडिया का बिफोर में बोल रहा है आप लोग किसको बहुत मारना है मारो वो हमको कुछ ये नहीं है। आप लोग जो है तेची राणा को मारेगा नवम तुकी को मारेगा तको शीतल को मारेगा जिसको मारना है मारो आप बिम्पक शिवा को मारेगा ना या नौता में मारेगा जिसको मारना है मारो। लेकिन बस हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तानुओ को बहुत रिजिजू पर आकिमा वो द रिपोर्ट ली को फाइनल रिपोर्ट ली को रिजिजू का निम 10% तर पाइमाम वो 5% तर पाइमाम बोला हर के हेरू में मनामो में चिंके नहीं से हला सके सिर्फ रिजिजू के लिए वोट नहीं देना बाकी आप लोग जिसको मारना है मारो और हम लोग का कुछ उसमें से भी नहीं है। माने दूसरा को सपोर्ट करे मीम सपोर्ट मला ह्यूमर्स के ngो nunia miango ngaso media tami
nono pripol ka result ako lakatote rujuji ka yang huna pait don tapes pait huna bidon हम मोती चिला क्योंकि हमको रिजुजी को जितना सके रिजुजी को नुकसान कराना है ना इसीलिए मो को हुनत नुनको को ओपिनियन पोल नुनु लुको यापे ओपिनियन पोल आकातते मो मी हुनत ताप जब पाइप बिदोन हे मी मिलो तामोती चिला ताकि रिजुजी का मैक्सिमम से मैक्सिमम नुकसान हो मोहल जो है ताना आ ओमो सिम किसको सपोर्ट हम मुंजीस माता था तो दिस इज रॉन्ग दुनिया में कता कता आ उन्होंने का टीम और कोर मेंबर इटसेल्फ में कोई कोई क्या बोलता है राणा का सपोर्टर भी है कोई कोई जो है फ्रेंकली बोलेगा किसी का हम लोग का मिशन साइड का और रिश्तेदार भी निकाल के मतलब अंदर का रिलेशन अल्लाह एक दे मतलब सपोर्टदार सके कोई कोई तो किसा मला में सपोर्ट मुझ सके मला मुन अंदर हो अगर हम लोग इस चीज़ को बोलने से हम लोग का अल्टीमेट मोटिव जो खत्म हो जाएगा हम लोग का मेन पर्पस जो खत्म हो जाएगा इसलिए बोला है कि उन पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना के बिल्कुल बायस नहीं होगा किसी कैंडिडेट का टुवर्ड्स में बस रिजिजू को वोट नहीं देना मेरा से मिशन क्लियर है हम लोग का सर आपने जो अभी एक पेपर दिखाया था जिसमें 2 एमपी और 5 रिजिजू का जहाँ सिग्नेचर है जो सिग्नेचर का उनने वहाँ में क्या रीजन लिखा क्या रीजन दिया क्या लिखा था कि जो सेंटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि डिलिमिटेशन यहाँ में नहीं कराएगा वो लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम रीजन जो यहाँ पे क्लियरली लिखा है ना सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा बोलकर ना उसी के लिए सिर्फ है और कुछ नहीं और ये भी अनड्यू एडवांटेज ले अनड्यू एडवांटेज कैसा बोलने से उस समय को पूरा इंडिया में जब हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर आतंकवादी का इश्यूज नागालैंड वहाँ पे इंटरनल ये कन्फ्लिक्ट ये आप लोग को बोलने से NACN का जो ये सब इश्यूज जो रहता है अंडरग्राउंड का जो इश्यूज जो रहता है नागालैंड और मणिपुर का भी सेम अंडरग्राउंड का इश्यूज और बैक एट 2001-2 उस समय को असम में भी अंडरग्राउंड का इश्यूज अल्फा ये सब होता था उन लोग का जो है ये सब जो है लॉ एंड ऑर्डर इसलिए इंटरनली ये प्रॉब्लम होगा उस रीजन से ये रुकाया गया था लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा लेकिन उसमें हम लोग का जो है हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव जो है उस चीज़ का अनड्यू एडवांटेज लेकर उस चीज़ का एडवांटेज लेकर वो बोला है कि अरुणाचल में भी प्रॉब्लम होगा ये होगा वो होगा ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था ही नहीं ना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अगर होता तो इतना लास्ट हम लोग साल से कैसा हम लोग का इलेक्शन चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता तो कभी हम लोग का प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकता था वो भी लगाया नहीं है कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं था बस पॉलिटिकल विल का कमी था तो सर आपको लगता है कि जो समय में जो प्रेजेंट MLA था जब वो ये डिलिमिटेशन टाइम को वहाँ का जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव MLA था उन्होंने भी अच्छा से वो नहीं किया उसको सपोर्ट नहीं किया या और अच्छा से उनको वो सपोर्ट नहीं दिखाया ये डिलिमिटेशन को लेके वो उस समय को ननी रिव्यू साहब जो है वो उस समय का सिटिंग MLA था उसने क्या किया नहीं किया वो हमको नहीं पता है लेकिन हमको इतना पता है कि उसने भी एक केस फाइल किया था PIL एक्ट फाइल किया था ना और वो PIL को केस जो लड़ा है हम लोग का एडवोकेट खोरातामा सर उसने ही ये PIL को मतलब वो लड़ा भी था उस चीज़ को लेकर लेकिन बाद में ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको रुका दिया था ऐसा हो गया था तो उसका डिटेल्स तो हम मालूम नहीं है क्या क्या ला रहा है किस पॉइंट में ला रहा है क्योंकि ये हृदय सर ने तो इसको इनकार किया था कि उनका साइन नहीं है बोलते उस पार्ट को हम नहीं पता है हम बस इतना पता है कि उन लोग ने एक PIL रिया साहब ने एक PIL फाइल किया था वो हम पता है किरण रिजिजू का जो कैंपेन कमेटी है हाँ तो जीरो के वासियों को ये कह के कैंपेन कर रही है कि अगर उसको किरण रिजिजू को वोट नहीं दिया तो जीरो में 100% डेवलपमेंट उसका थ्रू से ही आता है अगर उसको नहीं देगा तो जीरो के लिए कुछ नहीं कर देगा और MLA तो कुछ भी नहीं कर पाएगा MLA का कहना ये है तो आप उसमें क्या बस तो ये स्टेटमेंट ही गलत है कि 100% डेवलपमेंट जो है सिर्फ ये रिजिजू का थ्रू से आता है बोलकर और कोई ये नहीं है क्या अदर सोर्सेस नहीं है क्या हमारा स्टेट भी हमारा पेमा खांडू भी जीरो को प्यार करता है तो वो देगा डेफिनेटली देगा ना अलग सोर्सेस है और हमारा अभी का जो प्रेजेंट MLA जो इलेक्ट MLA जो है उसका अंदर में वो कैपेबिलिटीज़ है हम लोग उसका पूरा कैपेबिलिटीज एक्सपीरियंस को जैसे थोड़ा देर पहले बोला है कि हम लोग भरोसा करता है मोनोक चलो मेली को नहीं देखे ये गलत है कि रिजिजू सिर्फ 100% लेके आते हैं बोलकर ना और बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है वो लोग ये कह के अभी कैंपेन कर रहा है वो गलत है और जो उन लोग का कैंपेन कर रहा है ना उनमें से एक लीडर जो बोला था कि मुनु डेवलपमेंट लगी मा के डिलिमिटेशन लगी था बोलकर एक तो बोला था शायद आप लोगों को सबको पता है जिसने बोला था ना आप उसको पहले जाके पूछिए आप जो है एक साल पहले डेवलपमेंट लगी मा डिलिमिटेशन लगी दो उन्होंने चलो नितम पे दो डेवलपमेंट लगी दो डिलिमिटेशन लगी मा या फिर
डेवलपमेंट लगी पकोड़ा रिज्यूम बहुत बिकिन वाला ये शिफ्ट ऑफ स्टेटमेंट्स जो ना ये पूरा गिमिक और हमको ये चीज़ को बिल्कुल समझ में नहीं आता है वो किस तरह का उसका मेंटालिटी है। तो सर अभी जो आप लोग अगेंस्ट जाना है ये कोई ऐसा मोटिव है कि जीरो से किरण रिजिजू को वोट नहीं जाना चाहिए? हाँ, बस हारना उसका चाहिए। हार जीत का कोई मैटर नहीं है। मेरे लिए पर्सनली हार जीत के लिए मैटर नहीं करता है, बस उसको एक सबक सिखाना है, पूरा तनु जो याद करना है कि हम उसके अगेंस्ट में कैसा प्रोटेस्ट किया था ना, किस तरह से उसका अगेंस्ट में हम लड़ा था, सब साथ मिलकर उसके अगेंस्ट में लड़ा था। बाप यहाँ जीरो में इतना बड़ा से प्रोग्राम हुआ है, रैली किया है, इतना इतना बड़ा से रैली किया है, हेली में गए भैया मना इतना जल्दी जल्दी भूल जाता है ना। मतलब सबको यादाश्त का एक दवाई देना है उन लोग को, सपनों का दवाई नहीं, यादाश्त का दवाई देना है। और यादाश्त में उन लोग रियलाइज करेगा कि हम भी वहाँ में चिल्ला रहा था, डिलिमिटेशन V1 डिलिमिटेशन चिल्ला रहा है। अभी उन लोग पूरा सपनों का दवाई खिला के बोल रहे हैं, जो सपनों का दवाई खिला रहा है उन लोगों को याददाश्त का दवाई खिलाना है, तब उन लोग दोबारा याद करेगा कि सच में जीरो में क्या हुआ था, किस हालत में था बोलकर ना याद करेगा। वो पहले वो रिव्यू साहब जब एमओएस पे होम अफेयर्स एंड लॉ एंड जस्टिस का, क्या आपको लगता है कि उस समय वो और इसको अच्छे से कर सकता था डिलिमिटेशन को लेके? 100% उसका ही हाथ में था, उसका डिपार्टमेंट मेरे कागज उसका कंसर्न डिपार्टमेंट में था। आपको बोल रहा हूँ कि 2020 में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हम लोग का डिलिमिटेशन करा दो के बोला था, उसमें जो है फर्स्ट न्यू कमीशन जो सेटअप करता है वो भी कौन सेटअप करता है? डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उस डिपार्टमेंट को सेटअप करता है। अभी जो है उस चीज़ को हटाया किसने है? उस चीज़ को हटाया भी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। 2020 का मार्च को हम लोग को जो है नया डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप करता है और उसमें अरुणाचल असम सबका नाम इंक्लूड होता है। 2021 को फिर से जो है हम लोग का अरुणाचल असम मणिपुर और नागालैंड को हटा रहता है। कौन हटाता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंप्लीटली उसका कंसर्न डिपार्टमेंट था। MOS भी था, वो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी था, उसमें नहीं सकेगा तो बाकी में कहाँ सकेगा? अभी हम लोग क्या उसका प्राइम मिनिस्टर बनने वाला को रुकना पड़ेगा। और ये अभी रिजू जी हार जीत हमें तो मैटर करता है, हम तो चाहेगा कि जीरो में कम से कम आपातनी लोग एक वोट से हारना है, ताकि उसको पता चले कि उसने क्या आपातनी का साथ क्या जाति किया, ये क्या किया है। और खुद और वो और गुस्सा होने, वो हारता भी तो गुस्सा होने का जगह नहीं है, क्योंकि वो इतना गलत कर चुका है। तो इसीलिए सब लोग प्लीज़ रिजू जी के अगेंस्ट में वोट मारिए। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, अभी जैसे कि आप लोग अभी अगेंस्ट कर रहे हैं किरण रिजिजू का, वैसे ही आपने जैसे कि बोला कि वैसे ही अभी वो जो 3 टाइम्स MP रह के भी अपना को नहीं देखा है, तो अभी आप अगेंस्ट जाने के बाद जीरो से भले ही अगर उसको वोट नहीं भी मिलता है, तो आपको नहीं लगता है कि इसके बाद भी अपना ट्राइब जो है डिप्राइव हो जाएंगे? अपतन ट्राइब क्यों डिप्राइव होगा? पहले बात तो जैसे अभी थोड़ा देर पहले जैसे बोल रहा है, रिजिजू सब कुछ नहीं है, ही इज नॉट एवरीथिंग। एवरी डेवलपमेंट डज नॉट कम फ्रॉम रिजिजू अलोन, देयर आर अदर वेज ऑफ ब्रिंगिंग स्कीम्स इन जीरो, अलग तरीके से आ जाएगा। ही अलोन इज नॉट ए गॉड, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना। हम लोग जो है बार बार हम लोग जो डर के वो कर रहे हैं, हम लोग जो मतलब पहले से हम लोग वो वाला कैटेगरी में आ गया, डर वाला फियर वाला कैटेगरी में आ गया। वो अगर दिमाग में पहले से फियर वाला कैटेगरी आ गया बोलने से, अब फियर वाला माइंडसेट अगर रख ले उनसे, अब डर गया मतलब अब रिजिजू का सपोर्ट में बहुत मरेगा। वो डर से पहले तो निकालो कि रिजिजू का बिना भी जीरो आगे बढ़ सकता है बोलकर ना, वो डर को पहले निकालो। जिस दिन वो डर निकलेगा तब जो है आपका दिमाग जो कंप्लीटली अनबायस होके आप जो है वोट मार सकेगा। और ये जो है 100% हम भरोसा करता है कि हमारा जो तनगातान जो है जे पचे सिमोलू अगोली लमा पा तोंगे में हेरुम पनम पहाlang माइसुल दो हो जलो पा ngो मलांजे रिक्वेस्ट रापकली ngो सका लास्ट कंक्लूड मला रिक्वेस्ट मिलके मलांजे रिजिजू में बहुत तेमा बियायो निलु चिलुस दलो पा मलांजे से मी हेंदी एनी पगतोया रिजिजू मुन अगेंस्ट तो आयामा पा तानु मी आयामा पा तब नमुने लेला सिसी मी उनको लोला आस दलो पा रिजिजू पा बहुत दितो का लोला आस दलो पा मोल मी आता ताप्योंगे पे फर्स्ट क्वेश्चन तंगे पे रिजिजू का 2005 का पता साइना को मला apa masa ini रिजिजू का साइन masa gedon ला ही मोय तकातो है पे सेकेंड 2020 प्रेसिडेंट का डिलिमिटेशन में गमक तो कुला सो असम के 2023 मुबने बन्यांग के मुबने न 2002 एक्ट हिसाब पा बन्यांग मुबने ला है असम का अरुणाचल में गमक तो कुला प्रेसिडेंट का भी को हो ऑल पार्टी हो सिमक के नंते मा मयो 2021 का सेंसस हिसाब मो तो तले को हो न बा रिजिजू इंटरफेयर मु माने मो उन का लीडर इन सो न बा मो का एमएलए आता में लोकमान ऑल द पार्टीज में लोकमान की सी 21 हिसाब होइला की माके
si constitution mi break mun la hoi la ki ma constitution ngun ke 2000 ka 1 ka population hisab uske bikin son la sim ningba pelo ko manela him oi kon tati man jeta to ya hara conclusion ngo ngonge lola muntare hara deeply ngo age apa samalami ngo appreciate mo do mo ngo tapado ki mo gokla commitment itola do delimitation pa nam kane ka court of la kharcha inchi ka court kharcha mi apa samo biar me chido do hiba malang apa samme ngo ka front to ako pa ano oro payaro pa chola ngo mo mi mo luike mo tare aura apa sapta aura mun delimitation mi ano lagila mo te heru suro ke malanje himi ngaito mo apa sabne appreciate musto ojalo mo tare BJP ka MLA to kula gongore mi lola kumpa gala position da dakino mo upai pa support mo do paila BJP candidate mi support mo kudo pai mo do pa la ila gala condition mo majburi mo mustut ke ojagun baki rest of the tanata mananje bot oi tumaram pa aw hendi endi oi hemdola mo ya to ya nunu resume bot kis no pe kima pela atom oi question oi test to ya ni mo ta gudola bot to ya finally sekaneo ngo mananje payaro pacho